With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So this is the lecture of physics and it will be an introductory lecture for 9th O level physics. So बेटा अभी तक जो है आपने एक जनरल सब्जेक्ट पढ़ा है साइंस के नाम से। उस साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जो कि फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ थे, कुछ चैप्टर बायोलॉजी से मुतल्लिक़ और कुछ चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री से मुतल्लिक़ है। At this stage of your life, at this stage of your career, this science has been divided into three main categories. The first one is physics, second one is the biology, and third one is the chemistry. This lecture is actually the introduction to physics, what kind of physics is and what kind of laws and theories are discussed in physics. Later on we will discuss in our chapters, but for today we will have a little hint and we will have a little introduction to all these three subjects. Normally in physics we deal with the matter, energy and their relationship, and later on in this chapter we will discuss what is the matter and how matter is made up of and what is the relationship between matter and energy. And in biology we deal with the living organism, what are the different metabolisms and what kind of processes are happening in the human body, in animals, in all the living organism on this earth. इस पूरी ज़मीन पर, रोए ज़मीन पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं उन तमाम की मेटाबॉलिज़म्स के बारे में, उनकी फॉर्मेशंस के बारे में, उनकी पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस हो रहे होते हैं उन सब के बारे में जो है वो हम बायो में डिस्कस करते हैं। एंड द केमिस्ट्री एक्चुअली डील्स विद द कंपोजिशन, कि आपके पास इस रुए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशंस दे हैव and what kind of combining capacities and forces they have. Even you can say you discuss in chemistry at macro and micro levels. These macro and micro level justifies what is the formation and what is the arrangement of atoms that are combined with each other to form the specific shape of the matter. Clear? So this is actually the introductory lecture of physics, so it is very much necessary for us to define physics. So according to the definition of physics, physics is the branch of science that deals with the matter, energy and their relationship. So there are the three main key points in this definition. The first one is the matter, second one is the energy and third one is their relationships. So these 3 points, इन 3 की पॉइंट्स की गिनती बेटा सारी फिजिक्स आपके पास रोटेट करती है कि मैटर क्या होता है, मैटर में किस किस्म की चेंजिंग्स हो सकती हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किस किस्म की चेंजिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है और इनके दरमियान ताल्लुक फिर किस तरह से आप देख सकते हैं, वो हमने फिज़िक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करना होता है। सो सबसे पहले बेटा मैटर के बारे में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ये बहुत कॉमन सी बात है, आपने अक्सर सुना होगा अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए, साइंस टीचर्स को ख़ास करके, एवरीथिंग इन दिस मेड ऑन एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। अब मैटर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, हम छोटी क्लासेस में मैटर की ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग डेट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो जिसका थोड़ा बहुत वज़न होता है, वेट रखती है और थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, डेट इज़ नोन एज मैटर। अब मैटर जो है, मैटर इज़ फर्दर डिविजिबल, वी कैन से मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मैटर की जो सबसे बुनियादी बेसिक इनडिविजिबल वर्ड एटम है, एटम इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द वर्ड एटोमोस। सो ये सारा का सारा जो है वो आपके पास मैटर आता है। हर चीज़, एवरीथिंग अराउंड यू, इन योर सराउंडिंग, इन योर इन्वायरमेंट, इन दिस यूनिवर्स, हर चीज़ जो है वो बेटा मैटर से मिलकर बनी है। कोई भी चीज़ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कुर्सी, टेबल, बेड, एनीथिंग, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ एक्चुअली द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है कि कोई जिस्म कितना काम कर सकता है, कितनी रफ्तार से काम कर सकता है, कितनी जल्दी या कितनी जो है वो देर से किसी भी काम को सर अंजाम दे सकता है, डैट इज़ नोन एज एनर्जी। क्लियर? और एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स नीड्स एनर्जी टू डू समथिंग। पूरी यूनिवर्स के अंदर बेटा किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करने के लिए जो है वो सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक नीड फॉर एनी थिंग टू डू समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर जब तक आप खाना नहीं खाएंगे आपके बॉडी के अंदर आप बॉडी एनर्जाइज नहीं होगी, उसमें एनर्जी नहीं आएगी, यू कॉन्ट डू एनी थिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नो, ऑन द सिस्टम ऑफ दिस यूनिवर्स अल्लाह हैज़ स्पेसिफाइड और अल्लाह हैज़ सेंट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी
इन दिस यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स के अंदर जो है मखसूस मिकदार के अंदर जो है वो मैटर और एनर्जी को भेज दिया है। क्लियर। अब ना वो इससे बढ़ सकती है मिकदार, ना वो इससे कम हो सकती है। क्लियर, जो एक फ़िक्स अमाउंट है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन 1787 द लिवाजे गिव हिज लॉ related to the matter can't be created and matter can't be destroyed, but it can be converted from one form to another form. This is actually called the Lavoisier law, who put forward this law according related to the matter. And the same law is there for the energy, that is some book that is known as the zeroth law. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form. So energy is interconvertible, as well as matter is also interconvertible, but both have a fixed amount in this whole universe. पूरे यूनिवर्स के अंदर इनकी अमाउंट जो है वो फिक्स होती है आपके पास। क्लियर हो गया। अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी कन्वर्जन के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हमने ये भी पढ़ा है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेज होती हैं। अब अगर आप किसी भी सॉलिड को, सॉलिड इज ए मैटर, लिक्विड इज ए मैटर एंड गैस इज ए मैटर, ऑल दीज थ्रीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। तीनों की तीनों जो है वो बेटा आपके पास मैटर होती हैं। अब आप अगर किसी भी सॉलिड को एनर्जाइज करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप आ गया कि अगर सॉलिड को एनर्जाइज करते हैं, मैटर को एनर्जी से इंटरेक्ट करवाते हैं, तो वो सॉलिड जो है मैटर की शेप को चेंज कर देता है, उसकी फॉर्म को बदल देता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप लिक्विड को एनर्जाइज करवाते हैं और इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, तो वो जो है वो आपको गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देती है। क्लियर हो गया। सो इस तरह से हमारे पास रिलेशन होता है मैटर की स्टेट्स के अंदर भी, मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप होता है। और बेटा याद रखो, फिजिक्स जो है वो आपको फैक्ट्स और रियलिटी के बारे में सिखाती है। फिजिक्स आपको जो है इस पूरी यूनिवर्स में होने वाली थ्योरीज़ के बारे में बताती है। इट मेक्स योर इमेजिनेशन सो मच पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देती है आपकी इमेजिनेशंस को। ये कीन इंटरेस्ट, आप इसे कह सकते हैं, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स होती हैं अगर आप फिज़िक्स को पढ़ते हैं, फिज़िक्स से अटैच रहते हैं। सो ये आपको इमेजिनेशन बनाती है और इसके इमेजिनेशंस में पावरफुल बनाती है। और इसके साथ जो है ये आपको किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करती है कि आपके पास कोई भी फिनोमेनन जो है वो हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो जो है आपके पास किसी भी किस्म का फिनोमेना हो रहा है। क्लियर। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट to maintain your interest in this subject later on, inshallah, in our chapters. Clear. From this introductory lecture, if you have any kind of question, you can contact me anytime. Thank you very much. Stay blessed.